اور ہیڈ لائنز کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ کانگریس لیڈر نظام الدین نے تلنگانہ حکومت پر شعبہ تعلیم کو نظر انداز کرنے اور سرکاری اسکولوں کو بند کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے KCR حکومت پر KG سے لے کر PG تک مفت تعلیم دینے کے وعدے کی خلاف ورزی کرنے کا بھی الزام لگایا۔ انہوں نے تعلیم کو عام کرنے اور کم خرچ میں کرنے کی بھی حکومت سے مانگ کی۔ پچھلے گورنمنٹ میں جس طرح سے بچوں کو پڑھنے کی طرف راغب لانے کے لیے، پڑھنے کی طرف کرنے کے لیے ان کو اسکالرشپ کے ذریعے، فیس ری امبرسمنٹ کے ذریعے دیتے تھے، اس طرح کے پورے سہولتیں آج پورے ہونا، اس طرح کے پورے چیزاں آج پھر امپلیمنٹ ہونا بلکہ کانگریس پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ 2014 سپٹمبر میں ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم کے رپورٹ کے مطابق 43,861 گورنمنٹ سکولز، پرائیویٹ ایڈڈ سکولز اور ان ایڈڈ سکولز تھے، لیکن سلولی یہ سکولز کو بند کرتے ہوئے آج کم کر دیا گیا۔ KG to PG فری ایجوکیشن کے نام پر پرائمری سیکشن کے سکولز کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ جب لڑکا ہو یا لڑکی KG نہیں پڑھیں گا تو وہ PG تک کہاں جائیں گا؟ یہ کام KCR صاحب کٹنگ کر کے اس کو یہاں سے ایجوکیشن میں روک دیے، اور جب PG تک انہیں KG نہیں پڑھیں گا تو PG تک نہیں جا سکیں گا، لہٰذا ان کی پڑھائی یہیں پہ ختم کر دیا گیا۔ میں تلنگانہ کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ لوگ سوچیں، اور DRS گورنمنٹ سے، KCR صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کریں، زیادہ سے زیادہ اس کے اندر بجٹ لگائیں۔ پسماندہ طبقات کے رکن انجنیا گوڑ نے عادل آباد کا دورہ کیا۔ انہوں نے پسماندہ طبقات کے مختلف نمائندوں سے یہاں ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے سکندرآباد فائر اسٹیشن کی عمارت کا افتتاح کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ KCR حکومت عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات اٹھا رہی ہے، ساتھ ہی ریاست میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے۔ انہوں نے ریاست میں مزید 21 فائر اسٹیشن قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ తెలంగాణ తర్వాత చాలా బాగా పరిమితి చేస్తున్నారు, చాలా బాగా డెవలప్ చేశారు। పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఆనరబుల్ సీఎంలో చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము। 700 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్। ఇప్పుడు ఇండియాలో నంబర్ 1 పోలీస్ అంటే మా తెలంగాణ పోలీస్। అలాగే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఎంతమంది ఒక టీం బాంబే పోయింది, ఢిల్లీ పోయి చాలా ట్రైనింగ్ తీసుకొచ్చింది। అక్కడ పెద్ద హైరేజ్ బిల్డింగ్ ఎట్లా ఫైర్ అయితే కంట్రోల్ చేయాలి తప్పకుండా నేను ఆనరబుల్ సీఎం గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను। మా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్ ఆఫీసర్కి శుభాకాంక్షలు। حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے پہلے 6 مہینے کی تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ ایڈیشنل ٹریفک پولیس کمشنر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حیدرآباد میں 2019 کے پہلے 6 مہینوں میں حادثات میں 12% کی کمی دیکھی گئی ہے، ساتھ ہی 10% اموات بھی کم ریکارڈ کی گئی ہیں۔ انہوں نے عوام سے ٹریفک قواعد کی پاسداری کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ It is anybody's vehicle. See, we don't discriminate it is whose vehicle. All our cameras, they don't discriminate. No, with this ITMS, they will only see the number plate. That ANPR will see the number plate. It will not see who is sitting in the vehicle. Whether it is a Anil Kumar vehicle or whether it is your vehicle or whether it is our Harish Kumar vehicle. They will only see the violation and automatically the challan will be generated and through postal department will go to the concerned party. And now those who are not paying, that is why I am telling that we have now deputed 24 hours, 2 persons will be there. Of course, night time we can't disturb, so only daytime, from morning 8 to till 8 in the evening, all these 2 persons, their job is only to see the number of challan, who is having more number of challan pending, call them on phone and give them the information that so many challans are pending against you, kindly go and pay it. And we'll maintain the record and we'll see that they are paying or not, then as per law we'll take further action. سائبرآباد پولیس نے مندروں میں چوری کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کیا۔ شمس آباد زون پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کیا۔ اس گروہ کے ارکان تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک کے کئی مندروں میں چوری کر چکے ہیں۔ پولیس نے ملزمین کے قبضے سے نقد رقم زیورات بھی ضبط کی۔
बदनवानी में मुलविस तेलंगाना के इलाके केशमपेट की तहसीलदार लावणिया को 14 दिनों के लिए रिमांड में भेज दिया गया है। अदालत के हुक्म के बाद तहसीलदार को चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल किया गया। एसीबी ओहदेदारों ने बताया कि तहसीलदार के खिलाफ आमदनी से ज्यादा असासिजात होने का केस दर्ज कर लिया गया है। वाज़ेह है कि तहसीलदार लावणिया ने VRO के जरिए एक किसान से 4 लाख रुपए रिश्वत वसूल की थी, जिसके बाद लावणिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहसीलदार के मकान में छानबीन के दौरान 93 लाख रुपए नकद रकम के अलावा 40 तोले सोने के जेवरात पाए गए। एसीबी ओहदेदार मुख्तलिफ जावियों से इस केस की जांच कर रहे हैं। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफा वक्त की सबसे अहम जरूरत बन गया है। जल शक्ति अभियान के तहत ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफे को लेकर आवाम में शऊर बेदारी मुहिम निकाली गई। इस दौरान खम्मम में सेव वाटर का नारा बुलंद करते हुए रैली निकाली गई। इसमें शहर के आवाम और स्कूली तलबा की बड़ी तादाद शरीक रही। इस रैली में जल शक्ति अभियान के नोडल ऑफिसर राजीव रंजन मिश्रा ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर भी मौजूद रहे। रैली के दौरान तलबा ने प्ले कार्ड के जरिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदार किया। और वहीं जहां मुल्क भर में पानी की शदीद किल्लत है, इस किल्लत ने हमें पानी की अहमियत और इसे बचाने की तरफ तेजी से राग़िब किया है। इसी सिलसिले में अवाम के शऊर को बेदार करने में हमारे उलमा और हमारी मसाजिद भी हमारी रहबरी कर रही हैं। शहर हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ की शाही मस्जिद बाग़ आमा में वजू के पानी की हार्वेस्टिंग के जरिए ये पैगाम दिया जा रहा है कि किस तरह हम पानी की हिफाजत बखूबी कर सकते हैं। खास रिपोर्ट। मक्का मस्जिद के बाद हैदराबाद के मरकज बाग़ आमा में वाक़ शाही मस्जिद को शहर की दूसरी सबसे अहम मस्जिद समझा जाता है। इस मस्जिद में हर दिन 5 नमाजों में सैकड़ों और जुमे की नमाज में हजारों लोग नमाज अदा करते हैं। मस्जिद इंतजामिया ने पानी की अहमियत के मद्देनजर ये फैसला किया था कि मस्जिद में वजू के पानी की हार्वेस्टिंग के इंतजाम किए जाएं। इस सिलसिले में महकमे अक़लियती बहबूद से इजाजत के बाद मस्जिद के पीछे वाटर हार्वेस्टिंग के माहिरीन से मशवरे के बाद एक गड्ढे की तामीर की गई, जिसमें वजू के बाद खारिज पूरे पानी को जज्ब करने की सलाहियत है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम 20 साल पहले बनाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह जितना पानी यहाँ आता है पूरा का पूरा जमीन के अंदर जज्ब करने की पूरी कोशिश की जाती है। हर आदमी जो वजू करता है हजारों लाखों गैलन पानी यहाँ पर इस्तेमाल होता है। वो पानी बजाय ड्रेनेज में जाने के उसको हम ज़मीन में पहुँचाए, इसका इंतज़ाम करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब सैयद उमर जलील साहब थे, उन्होंने बाज़ाब्ता इसकी तरफ दिलचस्पी लेकर 2 पिट्स यहाँ पर बनाए हैं। 3 साल कबल अल्हम्दुलिल्लाह ये काम अंजाम दिया गया। उस वक्त लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि वो बड़ी ज़रूरत है। चुनाचे जितना पानी यहाँ पर वज़ू के लिए भी इस्तेमाल होता है वो डायरेक्ट ज़मीन में जाता है। शाही मस्जिद बाग़ आमा हैदराबाद में हर रोज तकरीबन 1500 मुसल्ली 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, जबकि जुमे की नमाज में तकरीबन 4000 मुसल्ली शरीक होते हैं। इस तरह हर रोज वजू पर 7500 लीटर और जुमे की नमाज के लिए 20,000 लीटर पानी खर्च होता है। मतलब ये कि शाही मस्जिद हैदराबाद में हर साल 7.5 लाख गैलन पानी को ड्रेनेज के पानी में जाने से बचाते हुए इसे जेर जमीन किया जा रहा है। जो सिस्टम लगाया गया है जो एक ऐन इस्लाम के मुताबिक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है, एक रिवर जा रही है, जो नदी जा रही है, उसमें भी अगर आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही करना है। पानी का भी पूछ होंगी, ये हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना फरमान है। दूसरी मजहबी इबादत गाहों के मुकाबले मस्जिद में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि नमाज से पहले नमाजियों को वजू करना जरूरी होता है। शाही मस्जिद बाग़ आमा की इंतजामिया ने पानी की हिफाजत की अहमियत को समझते हुए वजू के पानी को दोबारा जमीन के हवाले करते हुए सारी दुनिया को एक राह दिखाई है। शाही मस्जिद बाग़ आमा में वजू के पानी की हार्वेस्टिंग की यह मिसाल न सिर्फ हैदराबाद तेलंगाना बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए काबिल तखलीद है। कैमरामैन दास के साथ मैं अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और सबसे पहले बात करेंगे आंध्रा के बजट की। जी हां, आंध्र प्रदेश असेंबली में वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने बजट पेश किया। जुमला 2,27,984 करोड़ के बजट को रियासती काबीना ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद वज़ीर फाइनेंस ने असेंबली में बजट की तफसीलात पेश की हैं। बी सत्यनारायणा ने ज़रई बजट भी
पेश किया है। మరియు గౌరవనీయులైన సభ్యులారా, మీ సమ్మతితో 2019-20 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన బడ్జెట్ను ఈ సభా సమక్షంలో ఉంచుతున్నాను। आंध्र प्रदेश असेंबली में वजीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ ने बजट पेश किया। उन्होंने जुमला 2,28,000 करोड़ का बजट पेश किया। दूसरी जानब कानून साज काउंसिल में पी सुभाष चंद्र बोस ने बजट की तफसीलात पेश की। बजट में तालीम, ज़राअत और फलाही स्कीमात के अलावा सेहत के लिए बड़े पैमाने पर रकम मुख्तस की गई है। महकमे तालीम के लिए 32,618 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह ज़राई शोबों के लिए 32,670 करोड़, अम्मा बरी स्कीम के लिए 6,455 करोड़, महकमे बर्क़ी के लिए 6,860 करोड़, शोबे सेहत के लिए 11,399 करोड़, पंचायत राज और देही तरक्की के लिए 31,564 करोड़, मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के लिए 14,142 करोड़, पीने के पानी की स्कीम के लिए 13,139 करोड़, YSR రైతు భరోసా స్కీమ్ के लिए 8,750 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। మన దేశ చరిత్రలోనే ఎప్పుడూ వారసత్వంగా పొందని అత్యంత దయనీయ ఆర్థిక పరిస్థితిని ఈ ప్రభుత్వం వారసత్వంగా పొందినట్లు నేను మన గౌరవ సభ్యులకు మరి మన ప్రజలకు తెలియజేస్తున్నాను। విభజన సమయంలో 1,30,654 కోట్లుగా ఉన్న అవశేష రాష్ట్ర రుణం, అందులో ప్రభుత్వ రుణం 97,124 కోట్లు, ప్రజాపద్దు 33,530 కోట్లు। 2018-19 నాటికి అది 2,58,928 కోట్లకు, అంటే అందులో ప్రభుత్వ రుణం 1,92,820 కోట్లు, ప్రజాపద్దు 66,108 కోట్లు। बजट पेश करने से काबिल वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में काबीना की मीटिंग हुई। ये मीटिंग तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। इस दौरान बजट के तमाम शोबों पर तफसीली बातचीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और वहीं तेलुगुदेशम ने बजट को तनकीद का निशाना बनाया है। वाई रामाकृष्णडू ने कहा कि ये बजट कम और तशहीर ज्यादा है। 2019-20కి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఈ బడ్జెట్ ప్రచారమే తప్ప పసలైనటువంటి బడ్జెట్। దీంట్లో చూస్తే దాదాపు నిన్నటి వరకు కూడా అప్పుల మీద చాలా రాద్ధాంతం చేశారు। ఉన్నటువంటి వాస్తవాలను వక్రీకరించి వాళ్ళ వైట్ పేపర్ పెట్టి గత ప్రభుత్వం చాలా అప్పులు చేసిందనేటువంటి విధానంలో మాట్లాడారు ఆ వైట్ పేపర్లో। కానీ ఈ రోజున బడ్జెట్ పేపర్స్ కానీ ఈరోజు ఆయన ఆన్సర్ ఇచ్చినటువంటి విధానంలో కౌన్సిల్లో కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు। చూస్తే దాదాపు రెండింటికి చాలా వేరియేషన్ ఉంది। అప్పులు వేరు, పబ్లిక్ డెట్ వేరు, అదేవిధంగా లయబిలిటీస్ వేరు। बजट इजलास के दौरान असेंबली में अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू और वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के दरमियान नोकझोंक भी देखने में आई। फलाही स्कीमात को लेकर असेंबली में ये बहस हुई। పౌరుషంగా మాట్లాడాను నేను 2011 నుంచి కూడా మేము క్లియర్ చేశాం। ఇప్పుడు ఏదైనా ఉంటే మీరు క్లియర్ చేయాలి, అది క్లియర్ చేసేది మీ పరిధిలో ఉంది। మీరు అసలు పావలా వడ్డీ అనేది ఎప్పుడూ లేదు, క్యాన్సిల్ చేసేసారు। జీరో వడ్డీ పెట్టాం, మేమే పెట్టుకోండి, తప్పలేదు, మీరు పేరు మార్చుకోవచ్చు, తప్పలేదు। కానీ నన్ను రాజీనామా చేసి, అది కూడా ఈ పెద్ద మనిషి రాజీనామా చేసి వెళ్ళిపోతాడా? యూ గో ఆన్ రికార్డ్స్, మీరు వెళ్ళండి। నిన్న కాళేశ్వరం డిస్కషన్ వస్తే ఆ రోజు మీరు గాడిదలు కాస్తున్నారా? వాళ్ళు కడతామంటే ఇవే సార్ నేను పడాల్సింది ఇక్కడ, నేను అడుగుతాను, అందుకని వచ్చాను నేను ఇక్కడికి, ప్రజలు అందుకే మమ్మల్ని పంపించారు। బాధ ఉండదు దశ అంటే ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని, మీరు రాజీనామా చేస్తారా, ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్తారా? అది చెప్పాల్సిన బాధ్యత మీ పైన ఉంది దిశ। ఇది మీరు నేను రాసుకునేది కాదు, సోషో ఎకనామిక్ సర్వే 2015, సోషో ఎకనామిక్ సర్వే 2016-17। ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాను, దీనికి సమాధానం ఏం చెప్తారు? మీరు రాజీనామా చేస్తారా, 5 కోట్ల మందికి క్షమాపణ చెప్తారా? మీరు నిర్ణయించాల్సిందిగా కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాను। సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం మీద తాను చాలా గొప్పగా పథకాన్ని అమలు చేసినట్టుగా, ఆ పథకం
జాతీయ స్థాయిలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి పొగిడినట్టుగా ఫస్ట్ టైం ఎవరన్నా కానీ ఈయన స్పీచ్ కానీ ఇక్కడ కానీ చూస్తే ఆహా ఎంత గొప్పగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేశాడు, ఆహా ఎంత గొప్పగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతులను చూసుకున్నారు, ఆహా ఓహో అన్నట్టుగా అనిపించే కార్యక్రమం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష దానికి తోడు ఆయనకు కొంచెం ఎల్లో మీడియాలో కూడా ఆయనకు ప్రాతినిధ్యం ఉంది అధ్యక్ష. ఆ ఎల్లో మీడియా ప్రాతినిధ్యం ఉన్న నేపథ్యంలో ఈయన ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా కూడా తానా అంటే తానా తందానా అంటారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు 1180 కోట్ల రూపాయలు కట్టాల్సిన పరిస్థితుల్లో 44 కోట్ల రూపాయలు కట్టి మేము కట్టేసినాము, అయిపోయింది, స్కీమ్ సక్సెస్, వడ్డీ లేని రుణాల కింద ఇచ్చేశాము, రైతులందరికీ వడ్డీ లేకుండా రుణాలు వచ్చేశాయి, రైతులందరూ సంతోషపడాలి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. और वहीं असेंबली में मुबाहिसे के दौरान तेलुगुदेशम एमएलएस के हंगामा करने पर वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने तशवीश का इजहार किया और इजलास में खलल डालने वाले तेलुगुदेशम लीडरों पर जगनमोहन रेड्डी ने सख्त बरहमी का भी इजहार किया. కూర్చోమని చెప్పండి, కూర్చో, పరిసరాలు పెరగడం కాదు, బుర్ర పెరగాలి, బుద్ధి పెరగాలి, కూర్చో. మీరు చేసేది ఏమిటండి? మీరు మాట్లాడిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే, ముఖ్యమంత్రిగా నేను సమాధానం ఇస్తా ఉంటే, ముఖ్యమంత్రిగా ఇటువైపు నుంచి మా వర్షన్ మేము ఇస్తా ఉంటే, కనీసం ముఖ్యమంత్రి అని కూడా ధ్యాస కూడా లేకుండా, వినాలన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా మీరు ఏం చేస్తా ఉన్నారు? ముఖ్యమంత్రిని అబ్స్ట్రక్ట్ చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తా ఉన్నారు. ఇదేమేం చేసిందంటే మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడిండేవాడా? మీరు మాట్లాడిండేవారా? పచ్చూరు అనుకున్నారా? నేను పచ్చూరు అనుకున్నారా? శాసనసభ ఇది, శాసనసభ ఇది. ఎట్లా డోలం తయారు చేసినా మీరు నాకు అర్థం కావడం లేదు. మొత్తం రౌడీల్ని, మొత్తం గుండాలే తయారు చేసుకొచ్చినారు. మళ్ళీ నేను ఇవాళ ఒకటే మాట చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష, వాళ్ళ మాదిరిగా కమెంట్లు చేయడం మొదలు పెడితే, వాళ్ళ మాదిరిగా చేయాలి అని చెప్పి ఒక్కసారి మేము డిసైడ్ చేస్తే, ఒక్కసారి మేము కూడా డిసైడ్ చేస్తే మీ మాదిరిగా చెయ్యాలి అని, మేము 151 మంది ఉన్నాం అధ్యక్ష, వాళ్ళు ఉండేది 20 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళు శాసనసభలో కనిపించారు అధ్యక్ష. कुछ और अहम खबरें भी। करनूल के साबिक नवाब और मुजाहिदे आज़ादी गुलाम रसूल खान का आज 179वां यौम शहादत मनाया गया। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और आवास कमेटी की जानिब से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गुलाम रसूल खान शहादत को स्कूली निसाब में शामिल करने का भी यहाँ मुतालबा किया गया। शमसुद्दीन ने गुलाम रसूल खान की याद में एक कॉलेज और मुजस्मा नस्ब करने और करनूल एयरपोर्ट को मुजाहिदे आज़ादी के नाम से ही मंसूब करने की मांग की। गुलाम रसूल खान करनूल का नवाब है और 1839 में अंग्रेजी वाले से लड़े हैं। 1839 सितंबर में अंग्रेजी वाले से लड़ बाद से इनके गिरफ्तार करके तमिलनाडु में से तिरुचनापल्ली जेल के लिए जगह उधर ना को जहर देकर मार डाले हैं। करनूल में बंदूक तैयार करने का एक फैक्ट्री भी खोले है और मालूम कर ले के ब्रिटिश वाले आके करनूल किले के ऊपर हमला किया है। वो इसलिए वहाँ करनूल के नजीक एक जवाहरापुरम गांव है, वो गांव में उन्होंने जंग किया है, उधर पकड़ गए हैं। 1840 जुलाई 12 में उनको जहर दे के मार डाले हैं ब्रिटिश लोग। बाद से 1840 में करनूल डिस्ट्रिक्ट को उनका हमला किया, उनका हैंड ओवर में लिए को उनका रूलिंग स्टार्ट करे है। हमारे अरबी में भी है, हदीस में भी है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान,
जिस वतन में तुम रहते हो उस वतन से प्यार मोहब्बत करो, अपना जान माल कुर्बान करो। इस तरह से बात से नहीं सरका काम से करने वाले अहम शख्सियत को देखकर जब वो शायरी लिखे हैं कि हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रशस्त पुण्य पंथ है दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो बड़े चलो तलवार लेके चलो। बल्कि अंग्रेजों को हटाने के लिए सबसे पहले अपना अनमोल वक्त निकालकर सिर्फ 30 पर 9 साल की उम्र में वफात पाए हुए शख्सियत गुलाम रसूल खान के बारे में जानकारी रखना, शोर पैदा करना, फरीक के जहन में रहना हमारे कौमियत के लिए एक नमूना है। आंध्र प्रदेश के वजीर आबाशी अनिल कुमार यादव ने विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के फाजिल पानी को मशरकी कनाल के जरिए 1000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इस मौके पर रियासत की कई अहम शख्सियात मौजूद रहीं, जिनमें केनानी, पीनानी, श्रीनिवास, जिला कृष्णा के कलेक्टर इम्तियाज और दीगर भी मौजूद रहे। अनिल कुमार ने इस मौके पर कहा कि आने वाले दिनों में ज़राअत के लिए कुल मिलाकर 150 टीएमसी पानी छोड़ा जाएगा। औलाद के लिए लोग क्या नहीं करते, खुदा से मिन्नतें मांगते हैं। औलाद की तालीम और तरबियत, उनकी खुशी के लिए कुर्बानियां वालिदैन देते हैं, लेकिन यही औलाद बुढ़ापे में वालिदैन का सहारा बनने के बजाय अगर उनको पैसों के लिए कत्ल कर दे तो ऐसी औलाद से तो बे औलाद रहना है बेहतर। आंध्र प्रदेश के जिला कृष्णा के इलाके चंद्रालुपाड़ू में एक शराबी बेटे ने अपने ही सगे बाप को पैसे न देने पर पीट पीट कर कत्ल कर दिया। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। बताया जाता है कि 8 जुलाई को महबूब नामी 73 साला बुजुर्ग को ओल्ड एज पेंशन की रकम मिली। शराबी बेटे सिल्लार ने शराब नोशी के लिए बाप से ये रकम मांगी। रकम न देने पर नालायक बेटे ने बुजुर्ग वालिद को बेदर्दी से मारा पीटा। रकम न देने पर बाप को उठाकर घर से ही बाहर फेंक दिया और इलाज के दौरान महबूब का इंतकाल हो गया। पुलिस ने बेटे के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।